हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड द टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। इसका यूज बहुत एक्सटेंसिव है एंड लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियोमीटर इन डिटेल टुडे। उसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूँ। So potentiometer consists of two important circuit parameters. One is a primary circuit and second is the secondary circuit. एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले this is the primary circuit diagram जो black color में मैंने आपको बना रखा है यहाँ पर। So this is the primary circuit diagram. In primary circuit you have a driver cell जहाँ से current draw होती है. You have a series resistor which is also called rheostat, an ammeter and a potentiometer wire AB. It is of around 5 to 10 meters long and current flows through the potentiometer wire AB like this. Very important. Now gradually when we use the potentiometer wire for a very long time, current starts decreasing. तो उसके लिए we'll adjust the rheostat in such a way so that current remains constant. क्योंकि अगर हम कंटिन्यू अगर यूज करते जाएंगे तो बिकॉज रेसिस्टेंस है, इट विल डिसिपेट द बैटरी. सो उससे एमीटर की वैल्यू, एमीटर में जो करंट की वैल्यू, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. So we'll adjust rheostat in such a way that current remains constant throughout the circuit. Now, so it is an experimental setup to measure potential difference across two terminals of a circuit with high accuracy. What is mean the high accuracy? That if you use voltmeter instead of potentiometer, it will not give you the exact result, but potentiometer wire will give you the exact result. How we are going to do this? इसको समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सर्किट के बारे में. ये जो चीज है इसको हम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पैरामीटर्स, क्योंकि हमको ए बी की लेंथ पता होगी, हमको आरपी पता होगा पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस, हमको सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी और हमको ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल भी पता होगा. नाउ we know that the potential drop across AB can be calculated by using formula I into RP. V equal to I into R, where VAB is potential drop across AB, A से B तक का potential drop. Now this can be calculated by I into RP and I can be calculated by using E divided by RS plus RP, because total circuit में जो resistance है वो RS और RP है. These are in series and driver cell is giving you the EMF. So current is I equal to E by RS plus RP. So potential drop across AB will be E by R plus RP into RP. Therefore potential drop per net length, यानी अगर मुझे 10 मीटर की लेंथ पता है, 10 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और अगर इफ आई विश टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेंटीमीटर और ईच मीटर, सो दैट कैन बी कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग L. सो पोटेंशियल ड्रॉप AB डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर विल गिव मी पोटेंशियल ड्रॉप पर नेट length, which is also called potential gradient K, which is given by ERP by RS plus RP into 1 by L. And please understand, this is very important concept. It remains constant for a given primary circuit. अगर आपने primary circuit में कोई भी change नहीं कर रखा, if E remains constant, RS remain constant, RP remains constant, then K will remain constant for a given primary circuit and it is independent of the secondary circuit. अगर आप सेकेंडरी सर्किट जो मैंने रेड कलर से बना रखा है, अगर आप उसमें कोई भी चेंज करते हो उससे K की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा. दिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ हाउ दिस कैन बी यूज्ड, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल. तो हमारा अभी एम है टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल ES. इसका ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं. नाउ वी सी दिस, ये जो रेड कलर में आपके सामने, दिस इज अ सेकेंडरी सर्किट. सेकेंडरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गैल्वेनोमीटर, कैपिटल G. इट्स जिसका मिडिल पॉइंट बिल्कुल जीरो मिडिल पॉइंट पर होता है. यू हैव ए सेकेंडरी सेल जिसका हमको ईएमएफ निकालना है, एंड यू हैव अ मेटेलिक पीस कॉल्ड जॉकी. इट इज जस्ट गिव यू द पॉइंटिंग टच ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर एंड पोटेंशियोमीटर वायर इज AB. नाउ इफ यू सी हियर, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, लेट मी कॉल दिस पॉइंट P. अगर इस पॉइंट को P ले लूं तो अगर मैं पोटेंशियोमीटर वायर का कंसेप्ट लगाऊं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, अज्यूमिंग कि अभी सेकेंडरी सर्किट नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP जो होगा आपका, विच इज कॉल्ड VAP, कैन बी कैलकुलेटेड एज K into length of AP.
length of AP because of the formula V by L equal to K. So if you decrease length, potential will also decrease, so that because K remains constant, K is constant for a given wire. Now first equation is VAP equal to K into AP. Now please understand. Now we will adjust this galvanometer, the jockey point, in such a way that this galvanometer shows zero deflection. अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप AP के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर कहीं दो पॉइंट के अक्रॉस है. लेट मी कॉल दिस पॉइंट M एंड दिस पॉइंट N. दैट मींस पॉइंट MN, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यानी MN और AP दोनों पैरेलल में है, because if there is no current flowing through the galvanometer, so we can say that potential drop across MN is equal to potential drop across AP, because galvanometer में current नहीं आ रही. Now please recall, we are calculating the EMF of this cell, so we can simply calculate कि AM अगर MN में कोई current नहीं आ रही है और potential drop across MN के across केवल ES है, because there is no current flowing through it, so we can write ES is equal to and AP is equal to K multiply by AP. AP की कोई लेंथ होगी, so यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ES is equal to K into LAP, and that LAP we can easily LAP हम if we know the LAP we can easily calculate ES. Now please understand, अगर मैं EMF निकालने का सेकेंड मेथड वोल्टमीटर लगाता है इसके अक्रॉस, सो वोल्टमीटर वुड हैव ड्रॉन सम करंट, सो मुझको एग्जैक्टली ES की वैल्यू नहीं मालूम हो पाती. हमारे लैब में हम LAP वी कैन इजिली कैलकुलेट इट. वी नो K, वी कैन इजिली कैलकुलेट K बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ this ES. Very important device. This means we can calculate the EMF of any secondary cell with a high accuracy without drawing any current in the secondary circuit. This is a very important application. It is also called to finding out the EMF of a non cell. Similarly, अगर एक सेल और लगा हुआ है यहाँ पर, let me connect one more cell here and let's say इस सेल का EMF ES dash है और यहां पर भी मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और मान के चलो कि इसका डिफ्लेक्शन यहां पर कहीं पर आ गया P डैश. नाउ वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, नाउ द पोटेंशियल ड्रॉप AP डैश इज एग्जैक्टली इक्वल टू जो पोटेंशियल ड्रॉप ES के अक्रॉस होगा. सो वी कैन राइट दैट ES डैश इज इक्वल टू K विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड दिस AP डैश को आई कैन राइट L डैश. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड आई कैन कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स. I can also find out the EMF of an unknown cell if I know the length, balancing length and the potential gradient K. This is one of the important applications. The fourth application and the fourth concept is to find the internal resistance of a given cell. मान के चलो हमारे पास एक secondary cell ES है जिसका internal resistance R है. Now, हमको एक बात तो confirm पता है कि let me call this point AB, so we can simply calculate that the K will remain constant and K for a given parameter remains constant. So if I switch off, let's say ये R ले लिया मैंने, अब ये switch off है. If this is switch off और इस वाले point पर ये गैल्वेनोमीटर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, this means no current flowing through this end, यानी यहाँ से कोई करंट नहीं जा रही है. अगर इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आ रही है, so no current is flowing through this end. अगर यहाँ से कोई करंट नहीं जा रही है तो अभी मैं इस RS को हटा देता हूं यहां से. दिस मीन्स ये हुआ कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप हमारे इस पॉइंट को मैं M लेता हूं, इस पॉइंट को मैं N लेता हूं, वो इसके बराबर होगा, AJ के बराबर होगा. एंड लेट्स से दिस लेंथ इज L1. सो वी कैन राइट VMN इज इक्वल टू VAJ एंड VAJ को वी कैन राइट K इंटू L1 एंड दिस VMN इज ओनली ES, देयर इज ओनली वन सेल. So ES is equal to K into L1. This is my equation number 1. अब मैंने इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाया और यहां मैंने स्विच ऑन कर दिया. जब स्विच ऑन करेंगे तो अब करंट इस सर्किट में ड्रॉ होगी. अब मान के चलो अब यहां पर अगर करंट सर्किट ड्रॉ कर रहा है ऐसे यहां पर इस सर्किट में ड्रॉ हो सकती है करंट. सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ES विल डिक्रीज because this cell is now discharging. ये cell discharge हो रहा है. Let's say this is R. ये discharge हो रहा है और यहां से मान के चलो करंट I flow हो रही है. Now because of this, since potential drop is decreasing, so let's say balance point length will also decrease. So let's say it is here. ये क्यों decrease हुई?
क्योंकि अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज हो रहा है तो यहां भी डिक्रीज होना चाहिए, सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर यहां पर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप ए जे डैश के अक्रॉस है उतना ही इन दोनों पॉइंट के बीच है और उतना ही यहां पर भी है। सो दिस मीन्स व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन है, ये वाला सेकेंडरी स्विच ऑन है, तो लेट मी कॉल दिस पॉइंट 1, this point 2, this point 3, this point 4. So we can write potential drop across 1, 2 is equal to potential drop across 4, 3 is equal to potential drop across A, J dash. तीनों सेम होंगे because no current flows through the galvanometer. Why? Now naturally ये लेंथ कम होगी क्योंकि यहां पर पोटेंशियल कुछ कम होगा because battery is discharging. So now using this equation we can simply calculate that V12 which is I into R. So from second equation we can write I into R is equal to, और यहां पर मैं लिख सकता हूं K into, let me call it L2. Let's say this length is L2. This length is L2. This is equation number 2. Now we can relate equation 1 and 2 और we can also put it, मैं इसको IR की जगह we can simply put it V also, हम इसको V भी लिख सकते हैं. Now using 1 and 2, so if I solve 1 and 2 then it will be ES by V is equal to K times L1 by L2, K times L2, K से K cancel कर देंगे. ES will remain as, ES को we can write I times R प्लस स्मॉल r, क्योंकि जो करंट इस सर्किट में मैक्सिमम करंट आएगी वो I इंटू आर प्लस आर होगी और V आपके पास I इंटू आर होगा. दिस इज इक्वल टू L1 बाई L2 एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r. सो स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बाई L2. विद दिस इक्वेशन वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r. So you have seen a very important point. You have seen how to compare the EMF of two cells, how to find the unknown value of EMF, how to find the internal resistance of any given cell using potentiometer wire. But एक बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि secondary circuit and primary circuit are different. सेकेंडरी सर्किट में जो भी चीज हो रही है उसका प्राइमरी सर्किट के साथ केवल एक ही रिलेशन है कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रही है तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप सेकेंडरी सर्किट में किसी भी पॉइंट के बीच है उतना ही दोनों पॉइंट के बीच होगा. दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू मोर टॉपिक्स अबाउट द सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.